Rahim. Welcome back to speech processing. The topic that we are going to discuss next is actually a very exciting one. And it's also incidentally one of the topics which is an active area of research right now in speech, especially in Urdu speech, especially in the speech processing for languages other than the resource-rich languages. Although that it is still a very important area of research for the mainstream languages like English as well, because it plays a very pivotal role in almost all aspects of major speech processing tasks, including speech recognition and especially text-to-speech synthesis and so on and so forth. And so the whole topic is all about suprasegmentals. If you remember, we already discussed the basic idea of segments and suprasegmental features in the introduction at the beginning of the course. However, in this relatively short detailed version of it, so it is going to be detailed, but we won't be able to do justice to this amazing whole subdomain within speech processing, but we'll try to go as deep into it as possible given our time constraints. So in this section we'll be looking at the various features that come under the general umbrella of suprasegmental features of speech, and how they're important and how their understanding and realization can lead to better speech processing tasks, and in some cases it is pivotal and even central to the correct functionality of many speech processing tasks. तो हम सीधा अब इसको शुरू करते हैं. I'll start with a few examples of things and then साथ साथ जो है हम इसको build करते चले जाएंगे. Let's begin जी. So before going into suprasegmentals, let's really quickly revise what segments were. यहाँ पे मेरे पास एक recording है. Let me just bring it up in front of you. और I would encourage you to basically pause the video and try to figure out what was being said here. अगर आप पूरा स्पेक्ट्रोग्राम से नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट पॉज करके इतना ज़रूर करें कि ये फिगर आउट कर लें कहाँ पे वॉवल्स बोले गए हैं, कहाँ पर कॉन्सोनेंट्स बोले गए हैं, एंड कैन यू ऑल्सो फिगर आउट कि कहाँ पर हमारे पास लेट्स से स्टॉप्स बोले गए हैं और कहाँ पर फ्रिकेटिव्स बोले गए हैं. आई थिंक दैट यू शुड बी एबल टू डू दैट बाय दिस टाइम. एंड नाउ लेट मी बेसिकली प्ले द रिकॉर्डिंग फॉर यू. 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार. ऑलराइट, सो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार. अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर फोन रफली अपने एक ख़ास टाइम जोन की एक ख़ास टेम्पोरल विंडो के अंदर एग्जिस्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पा, राइट. पा का ये जो है रिलीज नज़र आ रहा है. So this is where your pa is, and this is where your is as it merges into a nasal. So this is an which is becoming an and it becomes an ch here. So chu और साथ ही उसके ये u शुरू हो गया, and उसके बाद you have your u here. So this is chu, u, and then is after that u is your short ha, and this is your he. If I select this whole thing, right, so you can clearly see कि ये सारी की सारी जो phones हैं corresponding to these phonemes are occupying their own regions. और although कि इनके बीच में कोई clear cut defined boundary नहीं है, ये एक breath में पूरी चीज़ बोली गई है, but still इनके अपने अपने zones हैं जहाँ पे ये शुरू होते हैं और जहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं. So for example मैं clearly कह सकता हूँ कि ये जो 5 में आ जो है, ये आ यहाँ एटलीस्ट नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये यहाँ कहीं पूरे जोन में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है. सिमिलरली चू के अंदर ये च यहाँ कहीं ख़त्म हुआ है और यहाँ पे चू के साथ ऊ शुरू हो गया है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस किस्म के फीचर्स को लाइक व्हाट योर phonemes are and what your even what your syllables are, इन चीज़ों को हम segmental features कहते हैं, ये segments कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें arranged होती हैं, एक दूसरे के बाद आती हैं, इनके हम boundaries define roughly कर सकते हैं, चाहे सुनकर करें या चाहे किसी और अंदाज से करें, इनको हम segments कहते हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी एक रिविजन हो गई, and let's now move on and see what segments are. So speaking about it more formally, your segments, so yes, a segment could be defined as a discrete unit that can be identified either physically or auditorily in a stream of speech. ठीक है, तो स्पीच तो स्ट्रीम है, लेकिन हमारी थ्योरी यहाँ पर ये है कि स्ट्रीम के अंदर हम डिस्क्रीट यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम फोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि फोनीम्स पे कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, या हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जिससे वो बनी हुई होती हैं, हम उन कॉन्सोनेंट्स को उन वॉवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू in the basically the Pratt recording that we were looking at in the spectrogram, and you can basically identify them.
और मिनिमल यूनिट्स फॉर एग्जांपल लाइक योर सिलेबल्स, या अगर हम राइटिंग की बात कर रहे हों तो मॉर्फीम्स, या अगर हम साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हों तो योर कैरीम्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आइडेंटिफाई हो सकती हैं इन अ स्ट्रीम। ठीक है, इनको हम इन तमाम चीज़ों को हम सेगमेंट्स कहते हैं। सो इनके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है जो इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है वो इनकी डिस्क्रीटनेस प्रॉपर्टी है। सो ये सेपरेट और इंडिविजुअल होते हैं एट सम लेवल ऑफ एनालिसिस, और सिमिलरली टेम्पररीली ऑर्डर्ड भी होते हैं। सॉरी टेम्परली ऑर्डर्ड भी होते हैं, यानी टाइम में ही ऑर्डर्ड भी होते हैं। सो एक दूसरे के बाद आ रहे होते हैं और किसी न किसी अंदाज में इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, राइट। एंड यूजुअली दे आर नॉट कंप्लीटली डिस्क्रीट, ये दैट्स ट्रू इन स्पीच प्रोडक्शन और परसेप्शन। सो ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं, एसिमुलेशन हमने पढ़ी थी, कोआर्टिकुलेशन हमने पढ़ी थी, सो देयर आर ओवरलैप्स। बट देन what else is there? अगर हमारे पास सेगमेंट्स हैं तो फिर सेगमेंट्स के अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है? And these other features are what we known as your suprasegmental features. So supra का मतलब होता है कोई चीज़ which transcends or which is above. So these are features which act above your segments. So इसको अब हमने डिटेल में देखना है। इसके अंदर वो क्यूज़ हैं जैसे कि जिनको हम प्रोसिडी कहते हैं, जिसको लहजा कहते हैं। सो लहजे के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन सुप्रा सेगमेंटल्स में आते हैं, जिनको कंबाइन करके हम प्रोसोडिक क्यूज़ कह देते हैं, या प्रोसोडिक फीचर्स कह देते हैं, या प्रोसिडी कह देते हैं। सो प्रोसिडी इन उर्दू मीन्स लहजा। इसके अंदर वो सारा कुछ आ रहा है जो कुछ भी आपकी उस ऑडियो में, आपकी स्पीच की ऑडियो में आपके वर्ड्स के अलावा है, फोनीम्स के अलावा जो कुछ है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी है कि सवाल पूछा जा रहा है या जवाब दिया जा रहा है, उसका इमोशनल यानी अफेक्टिव कंटेंट भी उसमें शामिल है। उसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंस या प्रोमिनेंस भी शामिल है। अगर मैं स्ट्रेस करता हूँ किसी एक वर्ड को अपने सेंटेंस में, ये भी इसमें शामिल है। इसमें वो सारे के सारे इमोशंस शामिल हैं, इसमें फीलिंग्स शामिल हैं, मूड्स शामिल हैं, इसमें अदर प्रॉपर्टीज़ जो मेरे बारे में कुछ इंडिकेट कर रही हैं। मैं इस पर फ्रेश हूँ, डाउन हूँ, लेजी हूँ, हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, एंग्री हूँ, फ्यूरियस हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब कुछ जो साथ साथ आ रहा है। सो इनमें से कुछ लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली हम देखेंगे कि वर्ड्स की मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ड्स के ग्रामेटिकल सेंस को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कि यहाँ ये नाउन था या वर्ब था। या ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें खाली ये एडिशनल क्यूज़ देंगी, जो कि हम जिनको पैरालिंग्विस्टिक क्यूज़ कह सकते हैं, या लेस लिंग्विस्टिक एटलीस्ट क्यूज़ कह सकते हैं, ये भी हमें देने का ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, सो बट these things, these prosodies basically realize themselves across the whole utterance. They move across these segments. ऐसा नहीं है कि किसी एक फोनीम ही के अंदर वो चीज़ हो रही है, ये फोनीम से ऊपर की चीज़ है। और although कि these things do tie themselves, और ये हमने आगे जाकर देखना है, they do tie themselves at particular places in a burst of speech, लेकिन उसके बावजूद ये उससे ऊपर के लेवल के ऊपर, उससे ट्रांसेंड करके काम कर रहे होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज सुप्रासेगमेंटल्स। सुप्रासेगमेंटल्स में भी एक चीज़ याद रहे, जिस तरह से आपकी फोनीम और फोन के बीच में डिफरेंस था कि एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ थी, गोल था, आइडिया था, और दूसरी चीज़ उसकी रियलाइजेशन थी, जो कि रियलाइजेशन हमारे फ़ोन्स की फॉर्म में हो रही थी। इसी तरह से हमारे प्रोसिडी के अंदर भी देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसिडी कि उसने करना क्या है। लेट्स से उसने क्वेश्चन करना है, उसने आंसर करना है, उसने टर्न टेकिंग करनी है कि जो एक चीज़ बोली गई और अगले ने उससे एक्सपेक्टेड है कि वो बोलना शुरू करेगा, उसने एंगर या हैप्पीनेस या सरप्राइज जो है वो सिग्नल करना है। ये सारी की सारी चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल मुझे हाई टोन फील हो रही है या लो टोन फील हो रही है, या मुझे स्ट्रेस जो है एक जुमले में एक जगह फील हो रही है, और एक उसकी रियलाइजेशन है कि यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी, वॉइस की इंटेंसिटी बढ़ी थी, ड्यूरेशन चेंज हुआ था। तो ये दोनों को हम अलग अलग देखा करते हैं, एक जिस तरह से वो चीज़ें हम उनका गोल है, और एक वो जिस तरह से रियलाइज हो रही हैं। So for example, here is an example from this research paper Urdu intonation के ऊपर, which is a very interesting paper. I would recommend कि आप इसको जो है वो अपने तौर पर पढ़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये बेसिकली दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको इसके वर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, उसके आपको so in fact you can see multiple things here. You can see the time domain plot here. So you have your time domain plot, you have your frequency domain spectrograms. You see these blue lines
which is the pitch, fundamental frequency, जो यहाँ पर इसको अभी हमने आगे तफसील से देखना है। ये एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर जो ये टैगिंग हुई हुई है, इसको हम टोबी सिस्टम ऑफ टैगिंग कहते हैं। टोन जिसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, टोन एंड ब्रेक इंटरसिस। सो टोन्स ये मार्क हुई हुई हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक चीज़ है जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये एक लो टोन को आप मार्क कर रहे हैं, बेसिकली इस लो टोन को आप मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक हाई टोन को मार्क कर रहे हैं। सो ये खैर इसकी तफसील में हम फिलहाल नहीं जा रहे। नीचे आपको ये ब्रेक्स नज़र आ रही हैं, ये वो ब्रेक्स हैं जो आपको वर्ड्स के बीच में, और कुछ ऐसी ब्रेक्स होंगी जो फ्रेजेस के बीच में ब्रेक्स नज़र आती हैं या अटरेंसेस के बीच में ब्रेक्स नज़र आती हैं। और इन ब्रेक्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि यू हैव साइलेंस हियर एंड यू हैव उनकी नज़र जौहर शनास एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, इसमें जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर है वो ये आपकी टोन्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि दीज टोन्स आर स्मूथली वेरिंग अक्रॉस योर फोनीम्स। सो ये किसी एक फोनीम से जुड़ी हुई नहीं है, ये अक्रॉस फोनीम्स चेंज हो रही हैं, और इनका चेंज होना हमें एक मैसेज कन्वे करता है जिसको हम इंटोनेशन कहते हैं, और हम देखेंगे कि इसी की मदद से ये उसमें भी रोल प्ले करेगी जहाँ पे स्ट्रेस या प्रोमिनेंस आ रही होगी। सो बेसिकली ये फीचर यहाँ पे इन दिस केस जो आपको पिच नज़र आ रही है, ये वो फीचर है जो कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर है, ये लहजे का फीचर है, ये किसी एक फोनीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसको मज़ीद और देखते हैं। Alright, Ji. So let's now look at some of the interesting aspects of this prosodic these prosodic cues, और ये कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं, या इसे ओपेरेंटली लगता है कि ओके फाइन, इससे हम कुछ चीज़ें सिग्नल कर रहे हैं लाइक आवर इमोशंस, बट दिस मे नॉट बी लाइक नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। और एक सेंटेंस जो मेरे पास एक ख़ास अंदाज में लिखा हुआ है वो कितने मुख्तलिफ अंदाज में उसकी वेरिएशंस हो सकती हैं, एंड जस्ट लेट्स टेक 1 or 2 वेरिएबल्स एंड वेरी अक्रॉस देम एंड सी के क्या बनता है खाली उस तरह से अपने सेंटेंसेस को चेंज करके। दिस एग्जांपल बाय द वे, इट्स फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम विकिपीडिया, the rest of it basically I have modified it a little bit, but let's look at the saliency or the concept of prominence of words in a sentence. All right, so ये मेरे पास एक sentence है which is a simple declarative sentence which is saying I didn't take the test yesterday. So these are the words, and now let me basically emphasize the first word in this and say I didn't take the test yesterday. So what does that mean? That means that maybe someone else did, but I did not do it. I can change the emphasis to the second word, saying I didn't take the test yesterday, which means that I did not take it. Or it could be I didn't take the test yesterday. Maybe I did something else with it, but I did not take it yesterday. And it could be the next word, I didn't take the test yesterday. So maybe I took some other test, but I did not take the test that we are all discussing. So or it could be that I took one of several tests, but not that specific test जिसकी यहाँ बात हो रही है. Or I didn't take the test yesterday. Or I probably took something else yesterday. I took a pill or something. I didn't take the test yesterday. And then finally, I didn't take the test yesterday. So maybe I took it on some other day, but not yesterday. So that's one spectrum. I just changed the saliency or the prominence in the sentence by moving it from one word to the other throughout the whole sentence. So ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, सेलियंस का कॉन्सेप्ट कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है या प्रोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ इसके साथ, ये अभी हम देखेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं जिसको वेरी करके ये सारा कुछ बन रहा है, बट ये है सेलियंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी ये यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ। आई कुड बेसिकली चेंज द होल थिंग टू अ क्वेश्चन एंड ब्रिंग अप अ होल न्यू सेट ऑफ मीनिंग्स। अब ये जहन में रहे कि वर्ड्स नहीं चेंज हो रहे, जो लिखा हुआ है वो नहीं बदल रहा, सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है वो चेंज हमारी इसके ऊपर जो हम सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स लगा रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। So for example, if I convert it into a simple question, it becomes I didn't take the test yesterday. It's a question. So I didn't take the test yesterday. So that's my question. Or I could make it I didn't take the test yesterday. Or I didn't take the test yesterday. Or I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. I didn't take the test. I didn't take the test yesterday. Or I didn't take the test yesterday. So basically now in the question
I'm wearing the stress from one place to another. So जो पहला वाला है उसमें अगर मेरा मीनिंग हो रहा है कि I didn't take the test yesterday, it simply means कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने टेस्ट कल नहीं किया था. In the second one, I'm basically changing it a little bit and I'm making it I didn't take the test yesterday, so that means कि क्या मैंने नहीं कल ये टेस्ट किया था, किसी और ने टेस्ट कर लिया था. And then I didn't take the test yesterday, so I'm becoming forgetful and saying कि मुझे तो याद है मैंने किया था. Or for example, I didn't take the test yesterday, so यानी मेरा ख्याल तो है कि मैंने I took the test yesterday, but maybe I ate it or something. I didn't take the test yesterday, so I remember that I took this test yesterday, but like did I take some other test yesterday? Or I didn't take the test yesterday, मेरा तो ख्याल है मैंने टेस्ट ही किया था, पता नहीं मैंने कल क्या किया, शायद मैंने उसकी जगह कोई और चीज़ कर ली, टेस्ट की जगह I took a pill or something. I didn't take the test yesterday, so I remember I did it yesterday, but didn't I do it yesterday? Do you think I did it on some other day? So you can clearly see here that just by wearing this prominence of the word in either a sentence or in a question, I'm coming up with a whole spectrum of meanings. And communication can basically break down if there's a mismatch between the way something is asked and the way something is answered. For example, if someone asks, did you take the test yesterday? And I respond, I didn't take the test yesterday. Now, although the meanings, the words are fine. Did you take the test yesterday? I didn't take the test yesterday. But when you said it like, I didn't take the test yesterday. So now the person who asked the question has no clue what you mean by that. Just because you changed the prominence and just because you changed your tone in a way, your intonation actually, and we'll see about that, in a way that you converted it into a question. You answered a question with a question. If even you would not have answered it with a question, still what should have been either this whole sentence should not have any stress, like I didn't take the test yesterday, or it should have had a stress on me. I didn't take the test yesterday, but the stress went on to, or the prominence went on to yesterday. So did you take the test yesterday? I didn't take the test yesterday. So again, there's a mismatch. तो ये हमारी बेसिक कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सेंट्रल रोल प्ले करती है ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमिनेंस या सेलियंसी. और यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो टोनल फीचर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, these are amongst the very first things that we learn about any new language and what a baby learns even when the baby is in the womb. अभी पेट में बच्चा होता है तो जो उसको आवाज़ें जा रही होती हैं उसके अंदर हमारी ये टोनल मेलोडीज होती हैं जो उस तक पहुँच रही होती हैं, टोन्स पहुँच रही होती हैं, and that's what the baby starts learning at from that point onwards. So हमने ज़िंदगी में भी सबसे पहले ये सीखा है और किसी भी नई ज़बान के केस में भी हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि उस ज़बान के tonal features क्या हैं, उसकी prosodies क्या हैं, उसका लहजा क्या है. So let's keep talking about this. Okay, so now let's look at the same in Pratt. So मेरे पास एक साइड के ऊपर यहाँ पर एक वर्जन खुला हुआ है, I didn't take the test yesterday, और दूसरी साइड पर I didn't take the test yesterday. एक साइड के ऊपर क्वेश्चन है, so we have the question on the left side and we have the statement on the right side. And if you compare the spectrograms, they look very similar. Like there are hardly any major differences between the two. However, we can still hear the difference. I didn't take the test yesterday is a question. I didn't take the test yesterday is a statement. So if we want to really see the difference between the two, can you help me find what I need to plot here? What is probably going to show me the difference? Maybe you can pause the video and think about that. So the one really telltale thing would be to plot the pitch. So if I plot the pitch here, and if I plot the pitch here. If you remember, pitch is basically the number of impulses generated at the vocal folds per second. So that's your pitch. That's your F0, your fundamental frequency. कि कितनी दफ़ा clap कर रही है आपकी vocal folds per second. And if you look at the statement on the left, I didn't take the test yesterday. It remains, so it seems like it's going down. लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें से क्या कुछ इग्नोर करना होता है और किस चीज़ पे गौर करना होता है. So basically there is it remains like within this zone of here, maybe from here, which is 176 hertz,
down to something like this, which is 103 hertz. इसको you can easily ignore क्योंकि ये इस point के ऊपर जब हम बिल्कुल ये break होना शुरू हो जाती है आपकी pitch तो it sometimes gives you errors. खैर, on the other hand अगर आप यहाँ पर देखें, so the lowest is 128, in fact no, so the lowest is around 113 hertz, and the highest that it has gone towards the end is 247 hertz. But more importantly, if you just compare these two pitch contours, so this one is going like this and then high at the end, and this one is low at the end. So comparatively it is very low, and compared to the beginning it is low. Compared to the beginning here, the end is high. So rising pitch signify कर रही है यहाँ पर question को, और falling या straight pitch जो है वो signify कर रही है statements को. तो ये एक पहला हमें यहाँ पे difference नज़र आ रहा है. Another thing that we will find, जो कि पता नहीं शायद इस वाले में तो इतना help ना करे, लेकिन हमें आगे और रिकॉर्डिंग्स में करेगा, दैट इज़ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को फ़िलहाल जब तक मैं आपको फॉर्मली ये नहीं पढ़ाता, यू कैन थिंक ऑफ इट एज द वॉल्यूम, लाउडनेस, कितनी लाउड आपको आवाज़ सुनाई दे रही है. सो दैट्स द इंटेंसिटी हियर एंड दैट्स द इंटेंसिटी हियर. And you can see, although यहाँ पर कोई बहुत major हमें difference नहीं नज़र आ रहा, but you can see here that the intensity kind of goes down towards the end, and here the intensity remains kind of same throughout the duration. ये जो बढ़ना घटना है अगर आप और करें तो ये इन टाइम डोमेन प्लॉट्स के साथ मैच कर रहा है. बेसिकली ये मैचिंग का वजह ये है कि इस टाइम पे हमारा वोकल ट्रैक्ट खुला हुआ है, तो ये वॉवल्स के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है. वॉवल्स आर हाई इंटेंसिटी एंड कॉन्सोनेंट्स आर क्लियरली लो इंटेंसिटी, विच मेक सेंस बिकॉज वॉल्यूम की ही अगर हम खाली मिसाल लें तो वो कम हो जाएगा जिस वक्त हम जो है वो कोई जिस वक्त हमारा वोकल ट्रैक जो है वो बंद है. ठीक है. सो पहली एक चीज़ तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक स्टेटमेंट और क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है पिच से. राइजिंग पिच टुवर्ड्स द एंड इंडिकेट कर रही है क्वेश्चन को, जबकि पिच अगर स्ट्रेट रह रही है या थोड़ा सा नीचे जा रही है तो ये स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही है. एक बात. दूसरी बात, क्या पिच की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं या पिच की रिलेटिव वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं. और ये चीज़ आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर आप कोई फीमेल आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं और उनसे इसी तरह से बेशक यही स्टेटमेंट आप क्वेश्चन की फॉर्म में और स्टेटमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करवा लें, यू विल सी कि जो उनकी एब्सोल्यूट पिच होगी हाई और लो की, वो उससे बहुत डिफरेंट होगी जो कि फॉर एग्जांपल मेरी है या किसी और अगर आप मेल से रिकॉर्ड करवा रहे हैं. और इनफैक्ट एक और डिफरेंस ये भी आता है कि फ़ीमेल रेंज यूजुअली ज़्यादा होती है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. द डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल वॉइस. सो ये सारी चीज़ें हमें अल्टीमेटली, और क्योंकि हमारे पास अगेन इतना वक्त नहीं है इस लेक्चर में, वेरी ब्रीफली हम ये जानते हैं कि हमारी रिलेटिव पिच एंड पिच मूवमेंट्स, यानी पिच राइज करती है या फॉल करती है, ये हमें परसेप्चुअल डिफरेंसेस दे रहे होते हैं बिटवीन थिंग्स लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ इमोशंस एज वेल. यहाँ तो ये खैर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, वैसे इमोशंस में भी ये डिफरेंस में काम आती है. ऑलराइट जी. सो अब हम इसको एक और एंगल से ऑब्जर्व करते हैं. मैं पहले खाली सिर्फ स्टेटमेंट वाला इसका हिस्सा ले लेता हूँ, एंड लेट मी ऑल्सो रिमूव द इंटेंसिटी टियर फ्रॉम हियर फॉर अ मोमेंट, एंड लेट्स जूम आउट अ लिटिल बिट, एंड लेट्स लुक एट दीज 3 रिकॉर्डिंग्स जो हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही हैं. सो लेट्स कीप इट एट 4 रिकॉर्डिंग्स, एंड लेट मी जस्ट प्ले देम. I didn't take the test yesterday. 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 I didn't. कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? कुछ देख रहे हैं आपके जो यहाँ पर सिग्नल हो रहा है, एम्फेसिस, प्रोमिनेंस जो सिग्नल हो रही है वो किस चीज़ से सिग्नल हो रही है? सो एटलीस्ट एक मेजर कंट्रीब्यूटर इन द प्रोमिनेंस इज़ योर पिच टियर. कि आपकी पिच अचानक राइज कर रही है इन दीज डेक्लेरेशंस. ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं हैं, और इनके अंदर आपकी पिच राइज कर रही है, और वो राइज इंडिकेट कर रहा है कि किस वर्ड के ऊपर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, किस वर्ड को मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ. एक चीज़. दूसरी चीज़, एंड दिस डजंट ऑलवेज वर्क बट या लेट्स सी, कि हमारा जिस जगह के ऊपर एम्फेसिस होता है, वी ऑफन सी, like for example you see it here in the general zone, you also see it here, but you don't see it very clearly here. That intensity is a second factor. हम usually उन चीज़ों को ऊंचा बोलते हैं या थोड़ा नीचा करके बोलते हैं जिन्हें prominent कर रहे होते हैं, उन्हें हाई फ्रिक्वेंसी में बोलते हैं या उन्हें लो फ्रिक्वेंसी में, लो पिच में बोलते हैं. तो ये चीज़ें सिग्निफाई करती हैं किसी एक वर्ड की प्रोमिनेंस को. सिमिलरली एक और आस्पेक्ट जो इसके अंदर होता है, एंड लेट मी बेसिकली ट्राई टू remove these things and see कि वो यहाँ पर हम observe कर सक रहे हैं नहीं.
सो पिच और इंटेंसिटी को बंद कर देते हैं एंड देन लेट्स बेसिकली कंपेयर दीज टू. I didn't take the test yesterday. I didn't. ऑलराइट, सो इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को, एंड लेट मी बेसिकली जूम इनटू दिस. पहले वाले में मैंने आई को सिंपल बोला है और दूसरे में एम्फेसाइज किया है. इफ़ यू सी, आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा. यहाँ पर आई यहाँ से यहाँ तक का है और इसकी लेंथ है मेरे पास ये 0.176 सेकेंड्स, जबकि अगर मैं यहाँ पर आकर इसको देखूँ तो इसकी लेंथ यहाँ तक जा रही है, I. which is 0.476 seconds. So ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस दे रहे हैं, हम जिस चीज़ को ज़्यादा सेलिएंट करके बोल रहे हैं, हम उसको लंबा बोल रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं. सो अब ये 3 फैक्टर्स हमारे सामने आ गए, जिसमें से 2 तो आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं. एक आप पिच का फैक्टर बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर पिच किस तरह से है और जहाँ पर मैंने इसको जो है वो इसकी प्रोमिनेंस बढ़ाई है, मैंने इसको क्लियर करके इसको सेलिएंट बनाकर बोला है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया है. तो उस स्ट्रेस के नतीजे में यहाँ पर मेरे पास हाई पिच नज़र आ रही है और सेकेंडली इसकी ड्यूरेशन इज़ ऑलमोस्ट 4 times, or I would say like 3 times that of. So yeah, let's call it like 0.2 and let's call it यहाँ से यहाँ तक I would say 0.5. तो तकरीबन ट्वाइस से थोड़ा सा ज़्यादा इसको लेंथन कर दिया है इसको बोलने में. सो ड्यूरेशन, पिच, एंड थर्ड थिंग इज़ इंटेंसिटी, जो कि शायद हमें इस वाले में तो नज़र आ रही थी अ लिटिल बिट. सो यहाँ पर यू कैन सी कि इंटेंसिटी जो है तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इस केस में हमने इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया हुआ है और उसको ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ बोला हुआ है. सो दिस इज़ बेसिकली 81 डेसिबल्स और यहाँ पर जो हमने इसको बोला हुआ है ये हमने बोला हुआ है 78 डेसिबल्स पे. और ये एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो स्केल्स हैं डेसिबल्स वगैरह की, ये सारे अभी आगे जाकर जिस वक्त हम टाइम डोमेन मेथड्स पे जाएंगे तो इसको हम वहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझेंगे. ठीक हो गया जनाब. नाउ विद दैट इन माइंड लेट्स गो एंड सी दी अदर एग्जांपल्स जो इसके अंदर हमने बोली हुई हैं. सो लेट मी जस्ट रिमूव द इंटेंसिटी, लेट्स कीप द पिच विद अस एंड लेट्स जूम आउट. और हमने आखिर वाले नहीं देखे थे तो लेट्स मूव मोर टुवर्ड्स द एंड. ऑलराइट जी. I didn't take the test yesterday. So you can see कि I didn't take के ऊपर यहाँ पर हाई है एंड देन I didn't take the test yet. सो द टेस्ट, अगरचे इसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिला, लेट्स सी कि अगर इंटेंसिटी कुछ रिवील कर रही है, इट्स pretty much stable, so not much. लेकिन अगर हम द की लेंथ को देखें, the test, whereas अगर आप यहाँ पे देखें the test, so look at this length and ये मैं ज़ाहिर एग्जैक्टली इसको नहीं वो कर रहा, और look at this length the versus के the. सो ये यहाँ पर लेंथ मेन फैक्टर है जो इसकी प्रोमिनेंस बढ़ा रहा है और इसको जो है वो इट्स ब्रिंगिंग इट आउट. अच्छा जी, आगे. I didn't take the test yesterday. The test. I didn't take the test. Yes. I need to zoom out a little bit and basically just go towards the last ones. I didn't take the test yesterday. And again, yesterday के अंदर जो है वो आपको एक तो लेंथ का डिफरेंस नज़र आएगा और दूसरा जस्ट कंपेयर दिस पार्ट विद दिस एंड देन यू कैन सी कि इस पार्ट के अंदर कम से कम पिच मूवमेंट्स किस तरह हैं. यहाँ पर ये नीचे हैं एंड यहाँ सडनली ये इंक्रीज हो रहे हैं. Yesterday. Whereas if you look at it here. Yesterday. तो लेंथ का डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा इसमें, और आपको दूसरी चीज़ ये भी नज़र आएगी कि इसमें पिच की मूवमेंट किस तरह से हो रही है. Alright जी, looks interesting. Let's keep doing this for now the question part. ऑलराइट जी. सो अब मैं इसी स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन के अंदाज में जब इसको क्वेश्चन की प्रोसोडी इसके साथ बोला गया था, मैं उसको अब लेट मी ब्रिंग दैट आउट. सो हियर इज़ द वर्जन वेयर आई मेड इट अ क्वेश्चन एंड लेट्स लुक व्हाट्स हैपनिंग हियर. सो हमें ये याद है कि क्वेश्चन में इन जनरल जो टोन है वो एंड पे राइज होती है, जो पिच है वो एंड पर राइज होती है. अब हम इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है. ऑलराइट. सो I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday.
सो आप सुन भी सकते हैं अगर आपके कान फ्रीक्वेंसी को सुनने पर ट्यून्ड हैं, पिच को सुनने पर ट्यून्ड हैं. बाय द वे फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल एंड पिच इज द परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ. आई एम यूजिंग लाइक ऑल ऑफ दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली, तो आप कंफ्यूज ना हो उससे. ये भी आगे जाकर हम इनको क्लियर कर लेंगे. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उलट हो रहा है. जब क्वेश्चन के अंदाज में चीज़ पूछी जा रही है तो जिस चीज़ की प्रोमिनेंस बढ़ाई जा रही है उसको एक्चुअली लोअर फ्रीक्वेंसी मिल रही है. और वो लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर पिच जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. इट्स ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप जो नज़र आ रहा है, जो एज कम्पेयर टू हियर जहाँ पर उतना ड्रॉप नहीं था. सो लेट्स जस्ट लुक एट इट अगेन. I didn't take the test yesterday. Now look at this I side. didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. And in this take, basically you can actually hear the creaking. So take. You can hear the vocal folds vibrating. कि ये low frequency के ऊपर इसको pronounce किया गया है. Similarly, you will also find कि यहाँ पर वो difference भी आएगा अगर मैं इसकी durations को निकाल लूँ. So let me just go here. And you can see कि यहाँ पर I जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, which is 0.19. और यहाँ पर जो I है वो आपका तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, which is 0.32. सो वो जो लेंथनिंग है इसकी वो बिल्कुल उसी तरह से हो रही. सो लेंथन हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ फ्रीक्वेंसी जो नीचे जाकर पहुँची है, इनफैक्ट इट्स अ लिटिल बिट लोअर, इट्स हियर, इट इज़ 109. वेरएज यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये ऑन एवरेज तकरीबन ये कोई 154 है और एट मैक्स इसी I के दौरान ये यहाँ तक भी गई है. लेकिन जो इसका लोएस्ट पार्ट भी है, ये वाला पार्ट जो I के शुरू में आया है बिल्कुल, इवन दैट इज़ 133. सो इसने यहाँ पर हमने बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आखिर में टोन राइज होनी थी हमारी, पिच राइज होनी थी, तो हमने शुरू में जिस जगह को प्रोमिनेंस दी है, जिस जगह को हमने सेलिएंट बनाया है, उस जगह हमने लोअर फ्रीक्वेंसी अपनी F0 को लोअर किया है. ठीक है जी. और ये चीज़, ये ट्रेंड आप इससे आगे भी देखेंगे. लेट्स सी, इन 3 एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कहाँ ये ट्रेंड हमें कितना क्लियरली नज़र आ रहा है. लेट्स बेसिकली मूव अ लिटिल बिट बैक. ओके, लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं. आई अपोलोजाइज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट सो दैट कि ये हमें एक विंडो में नज़र आ जाए. I didn't take the test yesterday. I didn't take the test yesterday. All right. I didn't take the test yesterday. So when did I take the test? Actually never. All right. So यहाँ अब आप जो 2-3 चीज़ें देख चुके हैं और समझ चुके हैं हमारे साथ, वो ये है कि कुछ फैक्टर्स मिलकर इस चीज़ में रोल प्ले कर रहे हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस लाना चाहते हैं तो वो हम करते कैसे हैं. या हम उसको लंबा करके बोलते हैं, या हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं, या हम उसको लो फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि हम स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के बीच में फ़र्क करते हैं इसी अपने पिच टियर की मदद से कि हमारी जो है वो पिच मूवमेंट्स क्या हैं. हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और राइज एंड फॉल से हम इंडिकेट कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन है या आंसर है. और ये हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा बेसिक रोल प्ले करता है. मिसाल के तौर पर जब हम टर्न टेकिंग करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग गुफ्तगू के अंदर, टर्न टेकिंग का मतलब ये कि मैंने बात की और उस मौके पे मैं रुका जहाँ पे अब आपने बात करनी है, तो ये सिग्निफाई करने के लिए भी हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, अपनी टोन को यूज़ करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी से ये चीज़ सिग्नल करते हैं. तो चलें आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स मज़ीद देखेंगे. बट आई होप यू आर गेटिंग द जनरल आइडिया ऑफ द सुप्रासेगमेंटल्स एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क टुवर्ड्स दीज डिफरेंट गोल्स. अच्छा जनाब, सो अब थोड़ा सा इसको फॉर्मली देखना शुरू करते हैं. सो प्रोसोडी जो है, जिस चीज़ को हम लहजा कह रहे हैं, या जो सुप्रासेगमेंटल फीचर्स को इन जनरल हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, वो प्रोसोडी की टर्म है. और अगेन अब यहाँ से आगे थोड़ा सा जहन में रखिएगा, दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स. और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के अंदर वी हैव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड देर आर ऑब्वियसली ऑपोजिशंस टू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स. देर आर ऑल्टरनेट थ्योरीज प्रेजेंट टू द मेन थ्योरीज जो कि अवेलेबल हैं. तो इस वजह से आपको जब आप डिफरेंट किस्म का लिटरेचर पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कि फॉर एग्जांपल एक ऑथर या एक थ्योरिस्ट जो है वो एक जगह पर एक चीज़ को ग्रुप कर रहे होंगे, एक दूसरी जगह पे कर रहे होंगे, कुछ 2-3 चीज़ों को मिलाकर एक नया नाम दे रहे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उस सब कुछ को जहन में रखते हुए कि ये तो होगा ही, ज़ाहिर साइंसेज में ये तो होता ही है, हम सिर्फ अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं उन मोटी मोटी बातों के ऊपर कि जिनके जानने के बाद एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रीड दिस लिटरेचर ऑन योर ओन. ये बात ज़रूर जहन में रहे कि दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिटरेचर, और अफेक्टिव कंप्यूटिंग या अफेक्टिव यूजेस, और यहाँ अफेक्टिव का मतलब हमारा यानी इमोशनल या मूड रिलेटेड
चीज़ें जो हैं ये स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल ना सिर्फ के हॉट टॉपिक है बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको समझना, इसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो इसमें आगे रिसर्च करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, so prosody is concerned with those elements of speech that are not individual phonetic elements, ठीक है, vowels and consonants. So ये segments के साथ, ये segments की बात नहीं हो रही, but are properties of syllables and larger units of speech including linguistic functions. So यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी larger unit पे काम कर रही हैं, पूरी utterance पे काम कर रही हैं या multiple syllables के ऊपर काम कर रही हैं, इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये वो features हैं जिनको हम prosodic features कहते हैं। अच्छा, अब इनमें जो पहला feature है जो वो pitch है, और अभी मैं आगे जाकर इसकी बात करूंगा कि पिच इज़ बेसिकली परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें जिस तरह परसीव होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये दो तरह से बेसिकली हम इसकी बात किया करते हैं। एक हम टर्म यूज़ करते हैं इंटोनेशन की। सो इंटोनेशन से हमारा मतलब होता है कि वेरिएशन इन पिच यूज नॉट फॉर डिस्टिंग्विशिंग वर्ड्स। सो ये ऐसी चीज़ है, ये पिच का ऐसा यूज़ है जिससे वर्ड्स में डिफरेंस नहीं हो रहा। सो वो टोनल लैंग्वेजेस याद है ना आपको, जहाँ पे लाइक मा एंड मा, वो सब जो उनमें जो डिफरेंट वर्ड्स बन रहे थे खाली हमारी उस पिच के चेंज होने से, जबकि बाकी सब कुछ सेम था, वो लेक्सिकल पर्पस था पिच का, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे, इसको हम टोन कहते हैं। टोन वो चीज़ है जो कि यूजुअली जब लिटरेचर में हम टर्म टोन यूज़ करते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है कि ये लेक्सिकल चीज़ है, ये डिक्शनरी के दो लफ्ज़ों के बीच में डिफरेंस करने के लिए यूज़ हो रही है, या दो ग्रामेटिकल फंक्शंस के बीच में डिफरेंस करने के लिए यूज़ हो रही है। यानी एक ही वर्ड कभी नाउन है और कभी वर्ब है, तो इस डिफरेंस को लेट से क्रिएट करने के लिए हम टोन को यूज़ करते हैं। और लेकिन जब हम पिच को यूज़ करते हैं कुछ और कन्वे करने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल दी एटीट्यूड्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, या द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस एंड बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखी हैं डिफरेंट एम्फेसिस के साथ क्वेश्चंस की, या यस नो क्वेश्चंस वर्सेस डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, वेयर व्हाई व्हाट टाइप क्वेश्चंस, इसमें जो डिफरेंस करने वाली चीज़ है ये भी हमारे पास इसमें इंटोनेशन यूज़ होती है, यानी पिच का इस्तेमाल हो रहा होता है, और वैसे ही पिच टियर चेंज होता है जैसे भी आप देख कर आए थे। फोकसिंग अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्पोकन मैसेज, ये हम स्ट्रेस से भी करते हैं, और स्ट्रेस के अंदर हम आगे देखेंगे कि एक मेजर रोल जो है वो पिच का होता है, इंटोनेशन का होता है। ठीक है, तो अब ये इंटोनेशन का टर्म वहाँ यूज़ होगी जहाँ पर लफ्ज़ों के बीच में फ़र्क करने के लिए नहीं, बल्कि इन चीज़ों के लिए हम पिच को यूज़ कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हेल्पिंग टू रेगुलेट द कॉन्वर्सेशन, जिसको हम टर्न टेकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ, हम दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, या लेट से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं आपसे बात यूँ करूँ कि आप बचपन में बहुत सी अच्छी किताबें पढ़ा करते थे। अब मैं यहाँ पहुँच के रुक जाऊँ तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि मैं क्या चाह रहा हूँ। जबकि अगर मैं कहूँ कि आप बचपन में बहुत सी दिलचस्प किताबें पढ़ा करते थे, तो अब इसका मतलब है कि मैंने सिग्नल किया है कि मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, अब आप बात शुरू करें। आप बचपन में बहुत सी दिलचस्प किताबें पढ़ा करते थे, यानी अगर आपको मेरी शक्ल नहीं भी नज़र आ रही इस चीज़ के अंदर, जस्ट सेइंग दैट स्टेटमेंट लाइक दैट सिग्निफाइज कि ये कुछ क्वेश्चन टाइप की चीज़ है, इसका कोई जवाब एक्सपेक्टेड है। जबकि मैं कहूँ आप बचपन में बहुत सी दिलचस्प किताबें पढ़ा करते थे, तो अब अगला शख्स इस कश्मकश में होगा कि मुझसे सवाल पूछा है, मुझसे पूछ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या करूं मैं इस वक्त। दैट्स वेयर कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। तो इस वजह से ये जो पर्पस, दिस इज टर्न टेकिंग। और ये आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लोग इसमें महारत नहीं रखते, वो उनको ये फील होता रहता है कि वो हर कॉन्वर्सेशन में बात ही काट रहे हैं दूसरे की, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, या दे हैव नॉट ट्यून्ड देमसेल्व्स टू पे अटेंशन टू द प्रोसोडिक क्यूज व्हिच आर सिग्नलिंग द टर्न टेकिंग दैट नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो पिच की जो इंपॉर्टेंट रोल है, जो जैसा अभी हमने कहा, एक हो गया इंटोनेशन जो ये ऊपर वाले कामों के लिए, और दूसरा है टोन। टोन जो है वो वेरिएशन इन पिच है टू डिस्टिंग्विश लेक्सिकल या ग्रामेटिकल मीनिंग। लेक्सिकल यानी दो लफ्ज़ों के बीच में फ़र्क करना, ग्रामेटिकल मीनिंग के उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में फ़र्क करना, कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, किस मानों में उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इसकी एक एग्जांपल ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम एग्जांपल है वो टोनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल्स हमारे पास इंग्लिश में भी हैं, जिसमें स्ट्रेस के अंदर जब टोन आती है तो वो डील होती है। बाय द वे मैं स्ट्रेस के टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी उसका जिक्र करता हूँ कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब ये होपफुली आपको पिच के दो यूजेस समझ में आ गए जो प्रोसोडी के अंडर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका अभी आप एग्जाम्पल्स भी देख कर आए हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो चीज़ है जो कि बेसिकली इंडिविजुअली डिफाइन नहीं होती, वो खुद इन्हीं चीज़ों में से जो प्रोसोडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनको यूज़ कर रही होती है, जिनके अंदर एफ नॉट यानी आपकी पिच भी शामिल है, जिसमें इंटेंसिटी या एनर्जी भी शामिल है। मैं फिलहाल इन सब चीज़ों को अभी आपस में मिक्स करके लिख रहा हूँ, जब हम टाइम डोमेन मेथड्स पे आएंगे तो फिर हम इन चीज़ों को तफसील से देखेंगे कि इनमें कोई फ़र्क है या नहीं है, कहाँ नहीं है। ड्यूरेशन जैसे अभी हम देख कर आए,
या शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी टू हायर फ्रीक्वेंसी। सो आपके जो स्पेक्ट्रोग्राम आप देख रहे हैं उसमें से हायर बैंड ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, मीनिंग एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी या ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। इस किस्म की चीज़ों से हम स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। अगेन स्ट्रेस भी दोनों तरह की हो सकती है, एक जिसे हम लेक्सिकल स्ट्रेस कहते हैं, ये भी हम देखेंगे। ये वो चीज़ है जहाँ पर हम पिच या ड्यूरेशन या इंटेंसिटी को यूज़ करते हुए लफ्ज़ों के बीच में फ़र्क करेंगे या लफ्ज़ों के ग्रामेटिकल रोल्स में फ़र्क करेंगे। और दूसरा इसका केस है प्रोसोडिक, जो अभी हम देख कर आए थे कि जहाँ पर हम सिग्निफाई कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टेटमेंट में। तो अब आप कहेंगे कि जी इंटोनेशन थी वो या वो स्ट्रेस थी। वो बोथ दोनों चीज़ें थी। आपने इंटोनेशन का वो टीयर देखा तो नीले रंग का नज़र आ रहा था, दैट वाज द पिच जो नज़र आ रही थी, पिच टीयर, वो इंटोनेशन का रोल था। लेकिन जो ड्यूरेशंस बदल रही थी और जो उसके अंदर इंटेंसिटी फ़र्क हो रही थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं नज़र आ रही थी, बट स्टिल इट वाज देयर। और ये जो हमने चीज़ नहीं ऑब्जर्व की, इस पर गौर नहीं किया कि शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी टू हायर फ्रीक्वेंसीज या इस किस्म की और चीज़ें, इस सब कुछ को अगर मिलाकर एक नाम दें तो वो स्ट्रेस है। सो खाली उस नीले वाले को देखें तो वो इंटोनेशन थी, पूरी चीज़ को मिलाकर देखें तो ये टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, ठीक है। और इन दैट केस इट वाज प्रोसोडिक स्ट्रेस, इट वाज नॉट लेक्सिकल स्ट्रेस जो लफ्ज़ों के बीच में या उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सो स्ट्रेस के अंदर इंटोनेशन शामिल है, ये एक रोल प्ले करती है इसके अंदर। ऑल्दो अगेन जैसे मैंने कहा ना, आपको ऐसी बुक्स भी मिल जाएंगी जो स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग इंटोनेशन, लेकिन देयर इज़ लाइक फ्यू एंड फार बिटवीन। ऑल्दो कि जिन लोगों ने वो बुक्स लिखी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, बट अगेन देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड सो ऑन। सो आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द बेसिक्स हियर, स्टिकिंग टू द मोर prominent, yeah, the more agreed upon definitions of things, or whatever agreed upon means here, because ज़ाहिर है differences of opinion इन चीज़ों में आपको मिलेंगे। अच्छा जी, रिदम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। शायद हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लेकिन रिदम का मतलब होता है रिपीटेड पैटर्न्स इन स्पीच, और हम रिदम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस भी इसमें वेरी करती हैं। कुछ को हम कहते हैं कि जो स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, यानी ऐसे सिलेबल्स जिनके ऊपर स्ट्रेस दी जा रही है, वो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होते हैं। कुछ को हम कहते हैं कि वो सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके अंदर जो है वो सिलेबल्स रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपीट हो रहे होते हैं, और बाकायदा उनमें हम स्ट्रेस टाइम के अंदर स्ट्रेस पैटर्न्स में उनको घटा या बढ़ा रहे होते हैं, और सिलेबल्स के अंदर सिलेबल्स को लंबा या छोटा भी कर रहे होते हैं, जिसका कुछ एविडेंस मौजूद है इन लैंग्वेजेस के अंदर टू मेंटेन रिदमिक पैटर्न्स। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिदमिक पैटर्न्स, एक उसकी एक्सट्रीम एग्जांपल पोइट्री है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अब ये जो पूरी चीज़ में आपने देखा है, ये जो वेरिएशन हो रही है सारी, ये बाकायदा ये तो प्लान करके की जाती है पोइट्री के अंदर। इसके बाकायदा ये इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि किस तरह ये सब कुछ बनना है। लेकिन अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिदम इन अ स्पोकन लैंग्वेज। पोइट्री में वो फोर्स्ड है किसी हद तक, लेकिन आम ज़बान के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब हम चाहें तो कभी कभी हम बहुत रिदमिक बोल भी सकते हैं, एंड देन अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू अस आल्सो ट्राई टू जॉइन दैट सेम रिदम, एंड सम लैंग्वेजेस आर मोर रिदमिक देन अदर लैंग्वेजेस। एक और जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर है वो टेम्पो है। टेम्पो इज़ कि आप कितना तेज़ या कितना आहिस्ता बोल रहे हैं। सो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात भी कर सकता हूँ, कम अल्फाज पर मिनट बोलकर, और ज़्यादा सोच सोच कर बात करूँ, या मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बोल सकता हूँ और मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकता हूँ। सो यू कैन सी द वेरिएशन बिटवीन टेम्पो, एंड टेम्पो ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल to also signify our feelings, our emotional state, the state of our mind, and so on and so forth. आपने देखा होगा बहुत परेशानी के अंदर एक शख्स अगर आया है तो हो सकता है बहुत तेज़ी से बात कर रहा हो, बहुत एक्साइटेड है तो तेज़ तेज़ बात कर रहा हो, और बिल्कुल वो अगर किसी वक्त लेज़ी या डाउन हुआ है तो हो सकता है बहुत स्लो बात कर रहा हो, या बहुत सोच कर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है तो वो इस तरह से कर रहा हो। Another aspect which is suprasegmental is voice quality, और दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डलेस ऑफ कि क्या बोला जा रहा है। हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रेथी आवाज़ में भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम स्क्वीकी आवाज़ में भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम स्टिफ आवाज़ के अंदर भी बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा हम क्रैकली आवाज़ के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो यानी दीज आर द कैपेबिलिटीज़ दैट वी हैव। और अगेन आप इस पर अगर गौर करें तो voice quality also plays a very important emotional role in our communication, और again इसमें कुछ जो I know from the US advertisement examples, कि अगर जब ऐसी
एड्स किसी ऐसी चीज़ को बेचने का ऐड होगा जो सॉफ्ट है, लाइक आई डोंट नो साबुन, सोप या टिश्यू पेपर और समथिंग लाइक दैट. तो the advertisement would contain very softly spoken sentences. People would be saying the soft skin, things like that. Whereas अगर कोई इस तरह का ऐड है जिसमें लेट्स से कोई बहुत ऐसी चीज़ बेची जा रही है जो कि विच इज़ रिलेटेड टू मैन, फॉर एग्जांपल लाइक आई डोंट नो एसयूवी, कोई बड़ी फोर व्हील ड्राइव वाली कोई गाड़ी बेची जा रही है, कोई ऐसी चीज़ है, तो यू विल बी फाइंडिंग वेरी strong and very stiff tones being used in the conversation. तो ये जो difference है इस सब कुछ के बीच में, ये emotional cues और emotional signaling के लिए सब कुछ use होता है. अगेन पिच रेंज. सो पिच रेंज का मैंने आपसे एक चीज़ तो बात ये की थी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे रेंज कुछ भी हो, पिच वेरिएशंस एक सिग्नलिंग करती हैं, लाइक क्वेश्चन वर्सेस आंसर वर्सेस इमोशंस की. लेकिन पिच रेंज का खुद होना, यानी हम जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई टोन के अंदर बात करना शुरू कर दें, या हम बहुत ज़्यादा लो टोन के अंदर बात करके कोई चीज़ को एम्फसाइज करने की कोशिश करें. सो ये हाई और लो के जो बीच में डिफरेंसेस हैं, ये भी बाज़ दफ़ा हमारी एक्साइटमेंट के लेवल को, हमारे सरप्राइज़ के लेवल को, इन चीज़ों को सिग्नल करते हैं. ये याद रहे कि हमारी जो इमोशंस का स्पेक्ट्रम है ये बहुत बड़ा है, और ये जो गुफ्तगू यहाँ से चलती है ये सिंगिंग और म्यूज़िक और रेसिटेशन के सारे मामलात में से भी गुजरती है. तो ये प्रोसोडिक क्यूज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मौजू है जो कि पूरी म्यूज़िक थ्योरी के ऊपर जाकर मिलता है कि किस तरह से म्यूज़िकल नोट्स के थ्रू सर्टेन इमोशंस को इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है लिसनर के अंदर, एंड सो ऑन. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर इसमें देखनी होती है सुप्रा सेगमेंटल्स में, वो पॉजिंग है. सो हम पॉजेज़ को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे कम्युनिकेशन में. जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बतानी हो तो उस मौके के ऊपर हम पॉज यूज़ कर सकते हैं. ठीक, यू कैन सी. सो पॉज का काम जो है, और वो लेंथ ऑफ द पॉज ऑल्सो प्लेज अ रोल हियर. बाज़ दफ़ा pause can be lengthened to a point where the conversation either purposefully or inadvertently becomes awkward. तो pausing एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर केयरफुली यूज़ किया जाए तो ये बहुत कुछ सिग्नल करने के अंदर यूज़ होते हैं. मैं आपको आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कभी भी ए ग्रेड नहीं आएगा. सो नाउ दीज पॉजेज हियर आर बेसिकली कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये जो पॉजिंग है, अगेन दिस इज़ अ सुपर सेगमेंटल क्यू. तो अब ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी कुछ मज़ीद चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है, बट ये वो सब कुछ है जो इस तरह की चीज़ों को सिग्नल करती हैं जिसको हम ऊपर अभी देख कर आए हैं, लाइक द अफेक्टिव क्यूज, फॉर एग्जांपल द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर, द डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि वो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है या कमांड है या क्या चीज़ है, द प्रेजेंस ऑफ आयरनी या सार्केज्म, तो ये भी इसी के थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू में एक मिसाल दी थी एक वर्ड की, उर्दू के वर्ड को आप कहें कौन वर्सेस के कौन वर्सेस के कौन. So all of that is conveying some information. कहीं sarcastic है, कहीं withdrawn है, कहीं तंग आकर आप एक चीज़ कह रहे हैं, कहीं कौन. So you are conveying some emotion here. खौफ भी इसके अंदर you can convey, extreme surprise भी. So एक ही word की utterances को you can say in so many different ways, and I would actually like you to try this, कि आपका ये जो capability है of conveying information suprasegmentally by saying the same word. So hello आप खाली कह रहे हैं, आप कह रहे हैं hello versus के hello versus के hello. तो सारे के सारे cases में you are conveying information suprasegmentally using the same words. अच्छा जी, एम्फसिस इसकी हमने बात की, जिसके अंदर हम प्रोमिनेंस और सेलियंस की भी बात करते हैं जैसे भी हम कर रहे थे, और कॉन्ट्रास्ट की भी बात कर सकते हैं. हम इसके अंदर फोकस की भी बात कर सकते हैं कि किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर आपने फोकस करना है. आई होप कि आपने गौर से सुन लिया होगा कि कल की क्लास लेट शुरू होगी, या आई होप आपने गौर से सुन लिया होगा कि क्विज इस हफ्ते ज़रूर होगा. तो अब ये जो सिग्नलिंग हो रही है ये फोकस लाने के लिए उस चीज़ की तरफ हो रही है. Or and so on and so forth. We can keep making these examples, and then other elements of language that may not be encoded by grammar or by choice of vocabulary. So ये यानी the spectrum is really big. जो कुछ आप convey कर सकते हैं using these suprasegmental features. On one side they convey very linguistic information, like the difference between words and the difference between parts of speech.
On the other side of the spectrum, they convey very paralinguistic information which is beyond just the language, जिसके अंदर emotions और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, so I hope अब पिछली एग्जाम्पल्स और ये सब कुछ मिलाकर कुछ ना कुछ आपके जहन में एक तस्वीर क्लियर हो रही होगी कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं. फिर हमने अभी बात की थी द डिफरेंस बिटवीन the auditory या the perceived measures and what is actually and objectively measurable. So for example, हम यहाँ अगर पहले perceived measures की बात करें, subjective impressions की बात करें, जो हमारे जहन में बन रहे होते हैं, listener के जहन में बन रहे होते हैं, उसमें कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो prosody के अंदर रोल प्ले कर रही हैं, like the pitch of the voice between like low and high, and it's highly relative as well. The length of sounds varying between short sounds and long sounds, like जो हमने वहाँ पर कहा था I versus I. Loudness और prominence, यानी हम किसी चीज़ को softly बोलते हैं या बहुत loudly बोलते हैं, तो ये difference between the soft and loud. And the voice quality, so the quality of the voice could be like breathy and crackly and squeaky and so on and so forth. तो ये सारा कुछ जो है ये auditory measures हैं, perceptions हैं, ये हम perceive कर रहे हैं इस तरह चीज़ों को. रफली ये चीज़ें कॉरेस्पॉन्ड करती हैं इन ऑब्जेक्टिव मेजर्स पे. ये कोई 1-to-1 डायरेक्ट नहीं है इनमें रिलेशनशिप, लेकिन रफली कुछ इस किस्म का रिलेशनशिप है. ये साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. सो योर पिच इज बेसिकली द परसेप्शन ऑफ योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F0 कहते हैं. ठीक है, इसको हम हर्ट्ज में या साइकिल्स पर सेकंड में मेजर करते हैं. ड्यूरेशन को हम टाइम यूनिट्स में लाइक मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में मेजर करते हैं, जैसे कि अभी हम वहाँ पर देख कर आए. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को हम साउंड के प्रेशर लेवल में इंडिकेट करते हैं, और हम आगे जाकर देखेंगे कि इसके लिए एक बेल स्केल है जिसको हम बेसिकली डेसिबल्स में यूज़ करते हैं, और वो क्या है, वो किस तरह से यूज़ होता है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी इन इटसेल्फ, और इसको हम आगे जाकर देखेंगे, एंड दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास इंशाल्लाह, जहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स को समझ रहे होंगे. एंड देन सो ये लाउडनेस हो गई आपकी इंटेंसिटी के ऊपर जो मैप हो रही है. And then finally your voice quality is mapping on to your spectral characteristics, so distribution of energy. So जो है वो lower zone में है या higher zone के अंदर है, आपकी vocal folds थोड़े से खुले हुए हैं और breathy आवाज़ निकल रही है, या आप बहुत low frequencies में बोल रहे हैं और आवाज़ correctly निकल रही है, and so on and so forth. ये जो सारा कुछ है ना, ये जो है वो यूज़ होता है बहुत कुछ सिग्नल करने के लिए. इसी तरह से आप जो है वो अप टॉक को अगर जाकर पढ़ें, जो कि अगेन यंगस्टर्स में स्पेशली इन द वेस्ट, इन द यूएस, जो यंगस्टर्स की एक टॉक का अंदाज़ था आज से चंद साल पहले तक, जिसके अंदर हर जुमले को थोड़ा सा हाई टोन के ऊपर जाकर ख़त्म किया जाता था, एंड सो ऑन. तो इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन रीड ऑन योर ओन फ्रॉम हियर. लेकिन सोशल सिग्नलिंग में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं कि बोल चाल का एक ख़ास अंदाज़ जो कि कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा हो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के बारे में या किसी और किस्म के स्टेटस के बारे में सोसाइटी के अंदर, और लोग उसको फिर फॉलो करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद अ particular class of society and so on and so forth. So this what begins as a very simple concept in linguistics, these concepts basically balloon out and they become really really big and important and interesting concepts in the overall study of social behaviors and behaviors of humans with others and so on and so forth. अच्छा जी, ऑडिटरी एंड एकूस्टिक मेजर्स ऑफ प्रोसोडी, ये जैसे हमने कहा कि ये लीनियर वे में आपस में कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनकी यानी एक रफ ही आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, और डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ दीज वेरिएबल्स ये बेसिकली मिलजुल कर भी कुछ चीज़ों को कन्वे कर रहे होते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि स्ट्रेस के अंडर हमने इंटोनेशन को अगर निकाल दें तो स्ट्रेस खुद अधूरी रह जाती है. तो स्ट्रेस बेसिकली कम्बिनेशन है इन फीचर्स का जिनमें इंटोनेशन भी शामिल है और ड्यूरेशन भी शामिल है, और उसके अंदर आपकी एनर्जी या जो लाउडनेस है वो भी शामिल है. सो अगेन अब ये भी याद रहे कि जब मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो मैं परसेप्शंस की कर रहा हूँ, और इन चीज़ों की कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहूँगा कि हम मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें. सो दिस हैज़ नॉट बीन रिहर्स्ड, सो आई एम जस्ट डूइंग इट एज आई एम शोइंग इट टू यू. बट मैंने किया सिर्फ ये है कि मैंने ये जो डिक्लेरेटिव जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, इस स्टेटमेंट का एक शुरू का हिस्सा निकाल लिया है, एंड दिस इज़ बेसिकली इट. ये वो स्टेटमेंट है जो आपने बोली थी, और लेट मी बेसिकली जस्ट प्ले इट. I didn't take the test yesterday. सो आई डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे. और अब मैं करूँगा सिंपली ये कि मैं इस स्टेटमेंट को पकड़ के एंड लेट्स ट्राई टू बेसिकली मॉडिफाई एंड सी कि क्या हम इसके साथ कुछ प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते. पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको लेट्स जस्ट टेक इट टू मैनिपुलेशन, और जहाँ पर जाकर हम इसके पिच टियर को अलग से इसके साथ प्ले कर सकें. ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ. वी डोंट नीड दिस, वी हैव द मैनिपुलेशन. और इस मैनिपुलेशन को अगर हम एडिट करें, सो दिस इज़ व्हाट वी गेट.
I didn't take the test yesterday. ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली मैं इस मैनिपुलेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसको लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट सिंपलर. ये जो इसका आखिर का हिस्सा है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ. तो लेट मी जस्ट गो टू pitch and remove pitch points. So I just remove these pitch points and then let's play. I didn't take the test yesterday. Okay, अभी भी ये हमारी स्टेटमेंट ही है, अभी ये कुछ और नहीं बना. लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक पिच पॉइंट ऐड करता हूँ एंड लेट मी मेक इट वेरी हाई एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. I didn't take the test yesterday. अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बट नाउ व्हाट विल हैपन if I start making this change in this zone. So let me basically, to simplify, let me remove these points and I think it was Control Alt T, yes, and then let me play it now. I didn't take the test yesterday. So now did you hear that? Towards the end of the statement, now I'm beginning to hear a question. All right, let me remove these as well. Control Alt T and then let's see what happens now. I didn't take the test yesterday. So now it's clearly becoming a question. All right. Let me remove these ones as well. I didn't take the test yesterday. So now this is very clearly now a question. और सिर्फ अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ और इस लेवल पर ले आऊँ. I didn't take the test yesterday. So अब ये अगेन स्टेटमेंट बन गया. So मैं सिर्फ जो दिखाना चाह रहा था इस मौके पर, वो आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हम वेरी इजीली इन पिच टीयर्स को निकाल कर पकड़ के एक ही जुमले को जो कि स्टेटमेंट के अंदाज में बोला गया हुआ हो, उसको बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन में एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन प्ले विद इमोशंस एज वेल. अभी तो ये खाली मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ. यू कैन टेक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स वेयर यू हैव इमोशंस एंड यू कैन फिगर आउट व्हाट दोज इमोशंस बेसिकली एनकोड and then try to basically take one emotion out and put another emotion in. It won't be as simple because वहाँ पर उसमें और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं आवाज़ के अंदर, जो कि बहुत simple variations of pitch वगैरह नहीं होती. But obviously we can play around with those things and we can see what becomes of them. Let's try to lower it as a final experiment. Let's see what happens then. I didn't take the test yesterday. So I didn't take the test yesterday. all right, so it's going a little bit down. Let me just remove all of these, in fact all of these, and let's do this crazy experiment and see what happens. I didn't take the test yesterday. Not very interesting or convincing. All right, let's remove this. I didn't take the test yesterday. So again a very a statementy like thing, and I didn't take the test yesterday. all right, so now it's clearly becoming just funny. all right. So feel free to play around with this. मैंने किया सिर्फ ये है कि मैंने इस साउंड को पकड़ा है, इसको मैनिपुलेशन में ले गया और मैनिपुलेशन में ले जाकर आई हैव जस्ट इसके पिच टीयर को जाकर मैंने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया. Whenever you want to, by the way, convert it back into speech, you can get a resynthesis. ओवरलैप ऐड से कर लें या लीनियर प्रेडिक्टिव कोफिशिएंट से कर लें और ये आपको दोबारा ऑडियो दे देगा विच यू कैन देन प्ले विद. ठीक है, और इससे हमने कुछ वो जो पिच टीयर ऑफ रिप्लेसमेंट वाला काम है वो तो आपको पहले ही सिखाया हुआ है. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लेक्सिकल स्ट्रेस की तरफ. सो पहला कॉन्सेप्ट जो लेक्सिकल स्ट्रेस में आपने समझना है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पिच एक्सेंट्स. सो वर्ड्स या सिलेबल्स जो किसी भी अटरेंस के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं, सेलिएंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कि इनके ऊपर जो है वो एक पिच एक्सेंट आ रहा है. सो पिच एक्सेंट इन आवर वर्ड्स वुड मीन कि स्ट्रेस इस चीज़ के ऊपर आ रही है. ये वाला वर्ड स्ट्रेस्ड है. लाइक फॉर एग्जांपल जो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो स्ट्रेस्ड है. मेरे बोलने से पहले आप खुद एक दफ़ा इसको बोलकर कोशिश करें कि ये वर्ड क्या ये सेंटेंस क्या बनेगा. So it would be, I'm a little surprised to hear it characterized as happy. So आपने इन वर्ड्स के ऊपर अब स्ट्रेस कर दिया. अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन वर्ड्स में किसी भी सिलेबल को स्ट्रेस कर सकते हैं? यानी क्या मैं ये भी कह सकता I'm a little surprised to hear it characterized as happy? No, that would sound very strange. So ये दूसरा interesting concept है कि the syllables that bear these pitch accents, these stresses, are called accented syllables, but not every syllable of a word can be accented. Pitch accent has to be realized on the syllable that has lexical stress. यहाँ अब stressed languages का जिक्र आता है
कि ये लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश शामिल है ये डिफाइन करती हैं एट इट्स वेरी कोर कि किसी भी वर्ड के अंदर कौन से syllable के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है. So the syllable that has lexical stress is the one that will be louder or longer if the word is accented. So for example, अगर मैं यूं कहता हूं surprised versus के surprised या surprised, तो hopefully you can feel कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ. इतनी हमारे पास नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश के इंस्टिंक्ट होते हैं, बचपन से हम इसको सीखते आ रहे होते हैं कि वी कैन बेसिकली टेल कि सरप्राइज्ड इज फाइन बट सरप्राइज्ड इज नॉट फाइन. तो इसमें जो आपका स्ट्रेस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है. दैट्स द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेस. सो नाउ इन अदर वर्ड्स, जब इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने स्ट्रेसेस लाने हैं, पिच एक्सेंट्स लाने हैं, तो वो पिच एक्सेंट्स ना सिर्फ के इन अंडरलाइन वर्ड्स पर आएंगे बल्कि वो इन bold faced syllables के ऊपर आएंगे, and then it would be correct use of these accents or these pitch accents या जो stress यहाँ पर आ रहे हैं. So now let me say it again. I'm a little surprised to hear it characterized as happy. So hopefully you can hear it and you can also feel it कि अब इसको हमने सही प्रोनाउंस किया है और इन 3 वर्ड्स को हमने यहाँ पर प्रोमिनेंट कर दिया है, यानी इसके ऊपर हम पिच एक्सेंट ले आए हैं. Alright जी, so now it's time for some actual examples. और हम ये देखते हैं कि so in this first set of examples जिसका मैंने ऊपर लिंक आपको दे दिया है, and feel free to go there and practice with it, or you will find more examples there as well, and also in other places on the internet. ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपकी लेक्सिकल स्ट्रेस डिफ्रेंशिएट कर रही है बिटवीन अ वर्ब जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है और बिटवीन अ नाउन जो कि इसकी राइट पे लिखी हुई सेकंड फॉर्म है. मैं चाहूँगा ये कि आप पॉज करें, इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल्स प्ले करूँ आप खुद से कोशिश करें कि क्या आप इसकी सही फॉर्म बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते. ठीक है, पॉज करके कोशिश करें और उसके बाद मैं ये चलाता हूँ, एंड देन यू विल फील द डिफरेंस के स्ट्रेस इसके फर्स्ट सिलेबल पे हो या सेकंड सिलेबल पे हो. दैट वुड मीन द डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब. लेट्स सी. अच्छा जनाब, सो आई होप आपने ट्राई किया. अब मैं कुछ ही एग्जांपल्स चलाता हूँ आपके लिए. लेट मी प्लेस द माइक्रोफोन हियर एंड लेट्स प्ले दिस. Record. Record. So you can see to record and to, let's say, establish a record, yeah, to break a record. All right. Permit. Permit. So permit is what you get for, let's say, driving, and permit is something that you like, you permit someone to do something, right? Address. Address. So address is what you go to and address is what you do with the problem. Export. Export. So exports are the things that you export, and the first one is you export something. So it's the stress on the second one. Transport. Transport. So trans के ऊपर जब स्ट्रेस आएगा तो हम इसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे और उस वक्त ये नाउन होगा, एंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे तो उस वक्त हम वर्ब की बात कर रहे हैं. Transfer. Transfer. So transfer is a noun and transfer is a verb. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया. अब हम एक और सेट ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं जहाँ पे एसेंशली हम बजाय जो है वो खाली डिफरेंस बिटवीन अ पार्ट ऑफ स्पीच करने के, उस एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि द एक्चुअल मीनिंग विल चेंज जस्ट बिकॉज स्ट्रेस का पैटर्न चेंज हो गया है और हमने सिलेबल बदल दिया जिसके ऊपर हम एक्सेंट या स्ट्रेस लेकर आए. ऑलराइट जी, सो यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम से ही देख रहे हैं कि देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑन दैट वेबसाइट. इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच वाली एग्जांपल्स भी हैं और ये मीनिंग चेंजिंग एग्जांपल्स भी हैं. आई जस्ट टुक अ फ्यू मीनिंग चेंजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम दैट वेबसाइट एंड दीज आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स गो थ्रू देम. सो ये पहला वर्ड है जिसे आप देख रहे हैं. कोशिश करें कि अभी ये वाली चीज़ को देखे बगैर अगर आप इसके दोनों, इन सारे वर्ड्स की दोनों फॉर्म्स खुद से सोच कर बोल सकें कि वो क्या होंगी जो इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं, एंड देन विल गो थ्रू द फॉर्म्स टुगेदर. ऑलराइट जी, सो जो आपको यहाँ पर इस वर्ड की फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, एक है conduct, which is we're unhappy about your general conduct, so the way you're behaving, and conduct,
I was asked to conduct the orchestra at a short notice. So this is where you're coordinating a musical performance by waving a baton, and then you have this word, which could be either console. I spend too much time at my computer console, uh, versus console. She was so unhappy I was unable to console her. Similarly, the next word, content. The content of your essay is fine, but you need to rearrange the structure. Whereas content, she was sitting reading a book looking very content. Similarly here, converse. Do you think firm A is more successful than firm B? I think the converse is true. Similarly, converse, he can converse in 3 different languages. Default, so default settings of the TV are bad, but you can configure it differently. Similarly, default, John default on his loan payments. Similarly, desert, the army marched through the desert, whereas desert, I wouldn't advise you to desert the army, as it will get you into trouble. So we can see that we have these words where the actual meaning of the word will change depending on कि हम stress जो है वो इसमें किस जगह के ऊपर रख रहे हैं. तो ये बात भी जहन में रखते हुए कि 2 चीज़ें अब आपने जहन में क्लियर रखनी है. एक तो ये लेक्सिकल स्ट्रेस है जो कि या ग्रामेटिकल फंक्शन के बीच में डिफरेंस कर रही है कि वर्ड ग्रामेटिकली नाउन है कि वर्ब है, या ये डिफरेंस कर रही है कि वर्ड का मीनिंग ही क्या है, यानी लेक्सिकल डिफरेंस ला रही है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं. दोनों केसेस लेक्सिकल में आते हैं. लेक्सिकल स्ट्रेस दोनों को रेफर करती है, ग्रामेटिकल को भी और इसको भी. लेकिन अब जब हम पिच एक्सेंट की बात करेंगे तो किसी जुमले के अंदर ये वर्ड अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसी वर्ड को स्ट्रेस करना चाहता हूँ, इस फर्स्ट वाले को मैं कहना चाहता हूँ वी, और यानी मैं वर्ड कॉन्डक्ट के ऊपर मैं जो है वो स्ट्रेस करना चाहता हूँ, तो वो स्ट्रेस कॉन के ऊपर आएगा, डक्ट के ऊपर नहीं आएगा. सो वी आरंट हैप्पी अबाउट योर जनरल कॉन्डक्ट. Whereas के दूसरे वाले केस में I was asked to conduct the orchestra at a short notice. तो वही जो syllable है वो बड़ा होगा, वही syllable फैलेगा, वही syllable अपनी duration में बढ़ेगा, वही अपने ऊपर intensity ज़्यादा, loudness ज़्यादा लेगा, जिसके ऊपर naturally stress आनी होगी depending on the meaning या depending on the lexical, the grammatical function जो उस वक्त required है. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है. ये भी समझ में आ रहा है कि एक तरह से आपका जो इंटोनेशन का टियर है वो आपके सेंटेंस के ऊपर ख़ास वर्ड्स पे जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप स्ट्रेस लाना चाहते हैं, और उसमें भी वो जुड़ा हुआ है उन सिलेबल्स के ऊपर जिनके ऊपर नेचुरली स्ट्रेस आनी है. अब यहाँ से आगे जो गुफ्तगू ज़ाहिर है अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करने लगे हैं, लेकिन यहाँ से आगे की गुफ्तगू अगर अपने तौर पर पढ़ें तो जो टाइमिंग है वो भी बेसिकली इसी से डिक्टेट हो रहा होता है. ये स्ट्रेस्ड सिलेबल्स एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं, एटलीस्ट दैट्स द थ्योरी. इन रियलिटी लिंग्विस्ट्स क्लेम कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ये रिक्वायर कर रही है एटलीस्ट फॉर इंग्लिश कि वो इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को एक रेगुलर इंटरवल पर आ रही है. सो दैट्स योर रिदमिक पैटर्न्स इन द लैंग्वेज. और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा यानी कभी कभी टाइमिंग के लिए और कभी कभी सिर्फ एम्फेसिस किसी एक चीज़ का बढ़ाने के लिए, कुछ दूसरी चीज़ों को डी एम्फसाइज करने के लिए हम बाज़ सिलेबल्स को रिड्यूस कर देते हैं, यानी वो लॉन्ग वॉवल से शॉर्ट वॉवल की हद तक चले जाते हैं और बाज़ दफ़ा शॉर्ट वॉवल से वो ख़त्म हो जाते हैं. सो इफ़ यू गो टू SLP3 योर बुक, उसके अंदर आपको एग्जांपल्स मिलेंगी ऐसे केसेस की भी जहाँ पे आपका शॉर रिड्यूस हो जाता है, और वो रिडक्शन जो है वो रिदमिक पैटर्निंग के लिए भी हो सकती है, और वो मीनिंग में किसी एक सिलेबल को ज़्यादा प्रोमिनेंस देने के लिए किसी दूसरे सिलेबल की प्रोमिनेंस कम करके भी हो सकती है. जाहिर है किसी चीज़ की प्रोमिनेंस दो ही तरह बढ़ाई जाएंगे ना, या उसको ज़्यादा आप जो है वो सिग्निफाई कर देंगे, या बाकी चीज़ों को यानी या आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे या बाकी सारे एक कदम पीछे हट जाएंगे. सो वो दोनों टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ये करने के लिए. Alright जी, so we have reached the end of this relatively short video, और इसमें हमारा मकसद सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करना था कुछ कॉन्सेप्ट्स का जो कि सुप्रासेगमेंटल क्यूज़ के अंदर या सुपरसेगमेंटल फीचर्स के अंदर आते हैं. अगर आप फर्दर इसको पढ़ना चाहें, आप देखेंगे आज के इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा उर्दू को डिस्कस नहीं किया. देयर वाज अ रेफरेंस एट द आई थिंक एट द सेकंड स्लाइड जहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी. एक वहाँ पे डॉक्टर सरमद के एक पेपर का रेफरेंस है उर्दू इंटोनेशन के नाम से. ये पेपर बहुत अच्छा डील करता है उर्दू की इंटोनेशन पैटर्न्स को, एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड इट. उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ नई मिलेगी जो एक इनकोडिंग स्कीम है जिससे हम
इंटोनेशन को कोड करते हैं उसका नाम टोबी है, जिसका जिक्र मैंने वहाँ ब्रीफली किया था, टोन एंड ब्रेक इंडिसेस। सो ब्रेक इंडिसेस से सिर्फ मतलब ये है कि हमारे पास एक नोटेशन है जिससे हम एक ऑडियो फाइल को उसके वर्ड्स की बीच में बाउंड्रीज़ को और अटरेंसेस की बाउंड्रीज़ को मार्क कर देते हैं कि अटरेंस यहाँ ख़त्म हो रही है और वर्ड एक यहाँ ख़त्म हो रहा है, अगला यहाँ से शुरू हो रहा है। और टोन इंडिसेस का मतलब होता है कि हम उन बाउंड्रीज़ के बीच में टोन्स को इंडिकेट करते हैं कि वो टोन हाई टोन है या लो टोन है, क्या वो पिच एक्सेंट है या वो बाउंड्री टोन है, यानी कि जिस वक्त एक फ्रेज़ ख़त्म हो रही है, एक अटरेंस ख़त्म हो रही है, तो वो उस वक्त की टोन है। तो अगर आप इसे भी पढ़ना चाहें तो इसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसे नहीं करूँगा। टोबी इज़ अ गुड स्टैंडर्ड बट इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फ्लॉज। तो फिलहाल उस लेवल पर समझना जिस तरह हमने डिस्कस किया है काफ़ी है, लेकिन हाँ अगर आप इंटोनेशन की और प्रोसिडी की फील्ड में मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लामोहला फिर आपको टोबी भी सीखना पड़ेगा आपको, और इस तरह की चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। एक टेड टॉक है यूट्यूब पे अवेलेबल एंड्रयू रोजनबर्ग की, आई थिंक इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक what we communicate is more than the words we speak or something like that. I would highly recommend that. That's a very interesting TED talk. उसमें उन्होंने इस तरह के काफ़ी concepts को discuss किया है, उसकी detail में गए हैं. So again, with the final note कि prosody and suprasegmentals are much more than what we were able to touch today. और ये phonology की field के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होते हैं, और हम जब TTS वगैरह के ऊपर आएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह की बात करेंगे, तो उस वक्त ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. डायलॉग सिस्टम्स में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिस्कशंस हो रही हैं कि योर डायलॉग सिस्टम शुड बी एबल टू, या योर वॉइस चैट बॉट शुड बी एबल टू figure out your emotions, your state of mind, your emotional state of mind when it's having a conversation with you. तो ये बहुत hot topics हैं इस वक्त के. Effective computing and effective speech processing are hot topics. If you're interested, I would recommend that you read on. If you want to get more pointers to other notes and papers, feel free to reach out to me, yeah, feel free to search for work that has been done by Dr. Sarmad's group. This is for Urdu and obviously for other languages. आपको खुद ही resources ढूंढने पड़ेंगे और आपको बहुत से resources मिल भी जाएंगे. So inshallah we'll meet in the next lecture. Until then, good luck और खुदा हाफिज.